Now we are moving to the next revision, and today I'm taking up one that is Forest Society and Colonialism from history, and the second one from political science. Thus, one chapter each in all the subjects would be completed, right? So, this chapter, Forest Society and Colonialism, what is basically the chapter about? मतलब जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे, how they are affected, what are their ways of using the forest, and how colonialism gave certain restrictions to them. तो सबसे बड़ी बात यह है कि over the period forests have been cut, and the cutting of the forest we call it as deforestation. और अगर आप एक डेटा देखते हो तो you will see that around 13.9 million square kilometer of forest have been cut around the world. That is 10% of the total area. So why deforestation? Because, and here we are talking only about India, because when the population increased, तो population के साथ हमारी जो जरूरत थी वो थी food. And food के लिए we needed the agricultural expansion. Then जो colonial government थी, they wanted that the land should be cleared, and there they wanted to have the commercial forest, यानी कि वो जिससे उनको पैसा मिलता है, टी, कॉफी, शुगर, और इसके लिए they brought all the forest under the cultivation. So this was one of these were the two reasons because of which forests were cut. Secondly, they also needed the logs of wood for making the sleepers. मतलब जो ट्रैक्स होते हैं उस पे जो अगर आपने पटरी देखी हो तो उसके ऊपर दो ट्रैक वो लगे होते हैं लकड़ी के. दीज आर कॉल्ड एज स्लीपर्स. एंड ओक ट्रीज जो हैं दे वर डिसअपियरिंग इन इंग्लैंड. They wanted forest resources for their purposes, and they also wanted the wooden plank for making railways. और इस वजह से भी उन लोगों ने जो है फॉरेस्ट को काट दिया. द थर्ड मेन रीजन वॉज प्लांटेशन. प्लांटेशन होता है when a single kind of crop is grown over a large area, like tea plantation, coffee, sugar cane, rubber. You have this in your 10th standard also, but that is something different. तो उन्होंने क्या किया, यूरोपियंस को, ब्रिटिश ने यूरोपियंस को ये एरिया जो है उनको दे दिया, सो दैट दे आर एबल टू प्रोड्यूस such plantations and earn money. So these were the reasons because of which the forests were cut in the Indian peninsula, sorry, Indian subcontinent. अब उस वक्त में मोस्ट ऑफ द फार्म जो हमारे फॉरेस्टर्स होते थे, दे यूज्ड फॉरेस्ट फॉर वेरियस पर्पसेस. मींस दे यूज्ड इट फॉर फूड, they used it for making cups, they used it for medicine, they used it as water bottle, they used it for umbrella. तो उनके लिए जो है फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट वर देयर लाइवलीहुड. लेकिन ब्रिटिश को जो है दे वांटेड कि द फॉरेस्ट शुड नॉट बी देयर, मतलब अगर होना चाहिए बट नॉट, बिकॉज दे वर नॉट थिंकिंग ऑन द एनवायरनमेंट वे. उन्होंने उस वक्त में क्या किया, अपने फॉरेस्ट को, लोगों की बातों को देखकर, दे कॉल्ड अप जर्मन फॉरेस्ट एक्सपर्ट को बुलाया, डाइट्रिच ब्रांडिस. उसने कहा कि देयर नीड्स टू बी सर्टेन चेंजेस मेड. एंड द फर्स्ट टाइम द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है इट वाज फॉर्मुलेटेड. और he also set up the Indian Forest Service, and the Imperial Research Institute was set up at Dehradun. और उन लोगों ने जो है एक फॉरेस्ट्री का स्टार्ट किया जो आज भी हम फॉलो करते हैं, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, विच
I have already said plantation. Plantation is a kind of scientific forestry in which a single kind of crop is grown in a row. ये जो एक्ट था, दिस वाज अमेंडेड ट्वाइस. एंड ऑल्सो द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है उसने डिवाइड कर दिया द फॉरेस्ट इनटू थ्री. और ये आपके बोर्ड का भी क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन, बिकॉज यू हैव द सेम थिंग इन 10th स्टैंडर्ड. अकॉर्डिंग टू दैट देयर वर रिजर्व्ड फॉरेस्ट. रिजर्व फॉरेस्ट वो होते हैं जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट जो है दे आर अलाउड. All the important and all the precious timbers are there in reserve forests. Protected होते हैं where the government gives protection to certain trees, certain species of trees, and village forest are the open forest. In India, reserved and protected दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं permanent forest. And मध्य प्रदेश जो है हमारा परमानेंट फॉरेस्ट का सबसे बड़ा एरिया है. एंड जो विलेज फॉरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट आपके, गुजरात आपके, विच आर ओपन. तो जब उन्होंने ऐसा एक सिस्टम बना दिया, एक ऐसा एक्ट कर दिया, तो जो फॉरेस्टर्स थे जिनको लीव्स, प्लेट सब कुछ चाहिए होता था, दे नीडेड द महुआ फॉर ऑयल, दे नीडेड द सेमू टू ग्रेट वेजिटेबल्स, उनके लिए द फॉरेस्ट एक्ट जो है दैट वाज लाइक अ कर्स. नाउ दे कुड नॉट एंटर इनटू द फॉरेस्ट फॉर फ्यूल, फॉडर, लीव्स, वो लोग नहीं कर सकते थे बिकॉज देयर वर सम रिस्ट्रिक्शंस. दे कुड ओनली गो इन द विलेज फॉरेस्ट. लेकिन विलेज फॉरेस्ट जो था दैट वाज नॉट फॉर, उसमें सारी सारी नहीं थी, नॉट ऑल द, दे कुड गेट ऑल द प्रोडक्ट्स. And moreover, Forest Act के according, they even had classified some of the foresters as criminals. उन्होंने criminals के नाम से उनको दे दिया, जिसकी वजह से वहां पे जो फॉरेस्टर्स थे उनकी लाइफ को काफी प्रॉब्लम्स आई. They also introduced that not everyone could enter into the forest for hunting. मतलब अगर कोई नॉर्मल इंसान हंट करता था तो दे वर पनिश्ड, वेयर एज दे गेव स्पेशल प्राइजेस टू दोस जो लोग हंटिंग करते थे फॉर स्पोर्ट्स. दे गेव विलेजेस, दे गेव मनी, दे गेव जूल्स. तो जो फॉरेस्टर्स थे दे वर कंप्लीटली अफेक्टेड. लेटर ऑन देयर वाज रेवोल्यूशन लाइक इन बस्तर. बस्तर के अंदर आपका रिबल स्टार्ट हुआ बिकॉज एक तो उनको फॉरेस्ट के अंदर जाने नहीं देते थे. सेकेंडली दे वर ऑल्सो, सम ऑफ द ट्राइब्स वर ऑल्सो सेड एज क्रिमिनल ट्राइब्स. तो इन बस्तर, इन देर वॉज अ बस्तर रिबल जिसके अंदर लोगों ने स्टार्ट किया यूजिंग चिल्लीज, मैंगो बोस, इन सबको लेकर जो है दे स्टार्टेड द रिबल. And ultimately, and that was because it was said that two-third of the forest, half of the forest would be reserved. और उनके उस मूवमेंट से only two-third of the forest were taken. So wherever there has been colonialism, wherever there has been commercialization of the crops, जिसकी वजह से फॉरेस्ट कटे हैं, वहां पर देयर हैज ऑलवेज बीन सम प्रॉब्लम्स टू द रेसिडेंट्स. और ऐसा सेम हमारा हुआ था इन जावा. जावा के अंदर भी ऐसा ही था, जहां डच जो थे दे हैड कॉलोनाइज दैट एरिया. उनको राइस प्रोडक्शन चाहिए था. यहां पर जैसे हमारा साइंटिफिक फॉरेस्ट्री था वहां पर भी दे हैड इंट्रोड्यूस्ड. The villagers were made to work inside the forest and they, उनको जो है कुछ privileges मिलते थे. एंड जावा के अंदर एक बहुत अच्छी चीज और भी थी कि वहां पर देयर वर अ कम्युनिटी विच कट द टीक ट्रीज, कलंग्स. एंड व्हेन इट इज सेड जब जावा को डिवाइड किया गया था तो इवन द कलंग्स वर डिवाइडेड. तो जब डचेस ने उनके ऊपर कॉलोनाइज किया, दे वांटेड टू हायर दीज टीक cutters
लेकिन इन लोगों ने ना तो उनको सपोर्ट किया, इनफैक्ट उनका जो एक फोर्ट था उसको अटैक किया. देवर लेटर ऑन कॉट. इन जावा ऑल्सो देयर वॉज वन पर्सन कॉल्ड सामीन जिसने चैलेंज किया था that if the forests are to be cut for any purpose, he would be laying down and he would not allow the people to cut. और उसको उसके इस चैलेंज को सपोर्ट किया था उनके अपने सन इन लॉ एंड बहुत सारे लोगों ने. एंड दे tried to support the forest by not cutting them. Even in India also we have such movements. We had such movement in उत्तराखंड. हमारे यहाँ पर भी था उसका नाम क्या, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने स्टार्ट किया था चिपको मूवमेंट. बाद में जब वर्ल्ड वॉर हुआ था उस वक्त में इन जावा द टीक ट्रीज वर कट, बोथ बाय डचेस देन बाय द जापानीज. उन लोगों ने भी जो है उसको जला दिया था, लीविंग अ स्कॉच प्लैनेट. बट इट वॉज वेरी लेट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर. चाहे इंडिया हो चाहे आपका डच हो, सॉरी जावा हो, पीपल रियलाइज्ड दैट फॉरेस्ट आर मोर इम्पोर्टेंट देन फॉर अस फॉर द सर्वाइवल. एंड तब से अब तक द कम्युनिटीज, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्कीम्स निकाले हैं जिससे कि फॉरेस्ट को जो है बचाया जाए. एंड दैट इज इन योर 10th स्टैंडर्ड पार्ट. And thus, though colonialism led to deforestation, but now gradually people are understanding its importance. So that is the chapter Forest, Society and Colonialism. The chapter may not be in every uh, school, but still it is part of history, so I have taken it up. Now, I'm coming to one of the very important chapter, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस. इस चैप्टर से क्लास 9 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आर 100% अश्योर. बिकॉज इस चैप्टर का जो आपका एक एक इम्पॉर्टेंट जो एक एक चीज जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट. आई कैनॉट से लीव दिस, आप इसको लीव कर दो उसको लीव कर दो, हम नहीं बोल सकते हैं. इनफैक्ट जो इंस्टीट्यूशंस है, this is the first chapter of your 10th also, power sharing. उसमें है नहीं, यहाँ पढ़ रहे हो वहां पर सिर्फ उसका एक दे विल गिव यू द डेफिनेशन. So let us first of all understand what is working of institutions. Institutions मतलब the designations, the गवर्नमेंट के अंदर वो लेवल्स जो हमें, जो गवर्नमेंट को चलाने में, जो गवर्नमेंट के जो लोगों के लिए लॉ बनाने में, एंड इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट तो उसको सॉल्व करने में मदद करते हैं. दे आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. इफ यू रिमेंबर फ्रेंच रेवोल्यूशन में देयर वाज वन क्वेश्चन, मतलब कि देयर वाज वन लाइन कि there was a book which said there should be a social contract between the citizens and government. And also the government should be divided into executive, legislative and judiciary. और जब आपका नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया था तो उन्होंने इसी सिस्टम को लिया था. So institutions here refer to those organs which work for the common people. So the chapter starts with a government order. मतलब एक स्टोरी के साथ वो स्टार्ट होता है that in 1990 there was an office order जो ये डेट डाल के था. एंड ये जो ऑर्डर था उसको साइन किया था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग ने. एंड इट वाज द ऑर्डर दैट जितने भी गवर्नमेंट में जॉब्स हैं अंडर,
उसमें 27% वुड बी रिजर्व फॉर द SEBC, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. And why this happened, I have been telling you in political science also, that in India there is a in-depth practice of casteism. And there have been certain castes which have not been given education, health or other privileges. Democratic rights में भी हमने equality में पढ़ा था. तो इस उनको जो है बराबरी देने के लिए, उनको जो है एनकरेज करने के लिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इशूड दिस ऑर्डर. तो ये जो ऑर्डर, एक ये ऑर्डर कितने लोगों के बीच में से निकल के आया था. ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, ये हमारा जो हीरो है, इसको कितने लोगों ने इसको बनाया था, कितने लोगों से इसको निकल के बाहर आना पड़ा. तो द वेरी फर्स्ट इज दैट the government appointed the second backward commission. और ये था to look into the problems of the backward communities, कि वो लोग आगे क्यों नहीं आ पाते. And this was headed by a person called BP मंडल, और इसीलिए इस कमीशन का नाम मंडल कमीशन पड़ गया उस इंसान के नाम पर. Now they tried to figure out all the problems why these people were socially or backward classes, और इनको कैसे हम improve करें. And they gave their report in 1980, and they gave the report, और उन्होंने साथ में recommend किया कि अगर हम इन लोगों को थोड़ा सा, we are giving them certain मोटिवेशन, इनको हम थोड़ा मोटिवेट करें, तो मे बी दे आर एबल टू कम अप. और इनको अगर स्पेशल कैटेगरी में लाएं, इनके लिए स्पेशली रिजर्वेशन होगा, तो दे वुड बी एबल टू कम इनटू द मेन एरियाज. और इसीलिए 27% ऑफ द टोटल सीट्स वर सेट टू बी रिजर्व फॉर देम. अब ये तो मंडल कमीशन का सिर्फ एक व्हाट वी से रिकमेंडेशन था. अभी जब आप ये सारे पढ़ोगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी हाउ द कमीशंस आर फॉर्म्ड. नाउ इस जब ये रेकमेंड हुआ तो इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड, ये तो सिर्फ एक रिकमेंडेशन था. एंड उस वक्त में आपके जो है इलेक्शंस आने थे, एंड जो अलग अलग आपके इलेक्शंस के, देर आर सो मेनी मैनिफेस्टोस. मैनिफेस्टोस मतलब हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी आती है वो अपने मैनिफेस्टोस को डालती है कि भाई हम ये करेंगे. तो जो जनता पार्टी थी, दैट प्रॉमिस कि इफ दे कम इनटू द पावर दे वुड बी इम्प्लीमेंटिंग द मंडल कमीशन रिकमेंडेशन. जैसे अभी दिल्ली में आपका जो है, देर इज एन इलेक्शन पॉसिबली आई थिंक नेक्स्ट मंथ. तो दे आर प्रॉमिसिंग अगर हम आए तो हम लोग रोड बना देंगे, हम आए तो हम ये चीज इंप्लीमेंट कर देंगे. सो दे प्रॉमिस दिस थिंग. नाउ जैसा सोचा था वैसा ही हुआ. द पार्टी वन द इलेक्शंस, एंड उनके जो लीडर थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. नाउ व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने पार्लियामेंट में जो है इस चीज को बताया, डिस्कस किया, एंड अल्टीमेटली विद द support of all the members, it was decided to implement this. Now जब उन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला, तो he had to go for a debate. लोकसभा के अंदर डिबेट हुआ, और सबने जो है इस चीज को, मतलब मैक्सिमम लोगों ने सपोर्ट किया. एंड इन दिस मैनर द recommendation was passed. The recommendation was passed. Once it passed, then वो जो ऑर्डर था जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, वो ऑर्डर जो है उसको भेजा गया टू द डिपार्टमेंट, जो लोग रिक्रूट करते हैं, जो लोग नौकरी पे लोगों को लेते हैं.
वो डिपार्टमेंट जो लोगों को नौकरी पे रखता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वहां पर इसको भेजा गया। एंड द गवर्नमेंट ऑर्डर वॉज ब्रॉट इन टू इमीडिएट इफेक्ट। So this one recommendation had to pass through so many procedures. पहले उसको, मतलब कि द कमीशन वॉज सेट अप, उसके बाद it was debated, and then it was implemented. नाउ जब इम्प्लीमेंट हुआ तो ऐसा नहीं है कि इट वाज लाइक ओके इम्प्लीमेंट हो गया चलो। नाउ देयर वर पीपल who thought it is wrong to give reservations, because रिजर्वेशन से जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनके नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कम हो जाते। तो नाउ some of the people thought it is fair, it is okay, but some of the people thought it is not okay. So there was a wide protest across India. इंडिया के अंदर जो है वाइड प्रोटेस्ट था, खूब तोड़फोड़ हुई, बसेस जलाई गई। अल्टीमेटली ये केस अब पहुंचा टू द कोर्ट, एंड इट वाज कॉल्ड एज इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस का नाम था इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंदिरा सहानी वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीआईएल विच वाज इश्यूड बाय द, मतलब लोगों ने जब बोला था उसके अकॉर्डिंग। एंड जो यूनियन ऑफ इंडिया था वो उन जिन्होंने ये ऑर्डर किया था उनके पहले। नाउ द केस वाज हर्ड इन सुप्रीम कोर्ट, एंड अल्टीमेटली कोर्ट ने डिसाइड किया दैट द ऑर्डर इज राइट, ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। द ओनली थिंग इज दैट देयर शुड बी अ स्लाइट चेंज, नॉट एवरी वन शुड बी गिवन द रिजर्वेशन। जो लोग क्रीमी लेयर्स हैं, क्रीमी लेयर्स मीन्स दोज हु आर हैविंग गुड इनकम, उनको इससे एग्जाम कर। एंड दस द केस वाज वन बाय यूनियन। तो अगर आप इन सारी चीजों को देखते हो तो व्हाट यू विल फाइंड इज देयर वर पीपल, हाउ मेनी पीपल या हाउ मेनी group was involved: the prime minister and his group, the president who appointed the prime minister, the people who implemented, who debated it in the Lok Sabha, and ultimately when it went to the court, वहां पे कोर्ट। यानी कि ये सारे के सारे जो लोग थे देवर इन्वॉल्व, और हम इन लोगों को ग्रुप बनाकर एक ही चीज में डालते हैं जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस। सो द प्राइम मिनिस्टर, द एमपीज, दोज हु हैड डिबेटेड, ये सब आपके जो हैं लेजिस्लेचर्स थे जिन्होंने लॉ बनाया था, जिन्होंने, एंड दोज हु इम्प्लीमेंटेड, जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर बन के वो इम्प्लीमेंट हुआ था, वो सारे आपके एग्जीक्यूटिव्स। एंड जब कोर्ट पे गया था तो कोर्ट जो है उसने डिस्प्यूट को डिसाइड किया था, यानी कि जुडिशरी। दैट मींस institutions in horizontal way are legislature, executive and judicial। इनको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। वाई डू वी कॉल देम हॉरिजॉन्टल? इनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। एंड वाई डू वी कॉल देम हॉरिजॉन्टल? बिकॉज दे आर इन द सेम कैटेगरी।
इन सबके इक्वल पावर्स है। और अगर लेजिस्लेटिव कोई गलती करता है तो द जुडिशरी हैज द पावर टू आस्क। एग्जीक्यूटिव करता है तो लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के पास है, जुडिशरी कोई गलती करता है तो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के पास पावर है। So they are equal in ranks and they can check and balance each other. So that is why we call it as horizontal. तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स। अब यहां तक जो हमने पढ़ा है ना, इसमें आपका व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ मंडल कमीशन, ये वाला पूरा। एक आ सकता है व्हाट इज द गवर्नमेंट ऑर्डर, ये। देन व्हाट वाज द कंट्रोवर्सी, ये सारे आपके छोटे में आ सकते। नाउ कम्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, why do we need such institutions? हमें ऐसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी की क्यों जरूरत है? दिस इज बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी when the political institutions are given some work, अगर उनको कोई काम दिया जाता है और वो काम उनको बता दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, भाई अब लेजिस्लेटिव को लॉ बनाने हैं, लॉ को चेंज करना है, they are supposed to look into the aspects of law, तो वो उसी काम को करेंगे। एग्जीक्यूटिव्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग दैट, एंड जुडिशरी जो एक्सपर्ट है दैट वुड बी लुकिंग आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि अपने अपने काम को दे आर एबल टू डू इन अ बेटर मैनर। तो नाउ अंडर लेजिस्लेटिव, हमारा जो लेजिस्लेटिव है उसके अंदर हमारे जो आ जाते हैं दोज हु आर मेकिंग द लॉ। एंड हमारे यहाँ पर वी हैव द पार्लियामेंट विच इज द हाईएस्ट फॉर्यूम। और आपके पेपर के अंदर ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है कि व्हाई इज पार्लियामेंट कॉल्ड एज द हाईएस्ट फॉर्यूम ऑफ डिस्कशन? क्योंकि पार्लियामेंट वो जगह है, parliament is that place where the elected representatives work. The elected representatives take the decision regarding any law. That is the area जहां आपके money, how the money has to come, टैक्सेस कहाँ डालने चाहिए, टैक्सेस कहाँ पर नहीं डालने चाहिए, व्हाट शुड बी द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, इनसे रिलेटेड सारे डिसीशंस यहीं पर लिए जाते हैं। एंड वॉट एवर डिबेट्स वी हैव, जो भी हमारे डिबेट्स होते हैं वो इसी जगह पर होते हैं। So that is why it is said that parliament is the highest form of discussion and debate in any country. In India, we call it as parliament, but if you go to US, they call it as Congress. नेम अलग होगा लेकिन उनका जो फंक्शन है वो सेम होता है। एंड वी इन आवर कंट्री हैव टेकन द मॉडल ऑफ ब्रिटिश, हमने ब्रिटेन से पार्लियामेंट का जो मॉडल है वो लिया है हमने। सो हमारा जो पार्लियामेंट है उसके अंदर वी हैव टू हाउसेस। हमारे जो है पार्लियामेंट इज ऑन द यूनियन लेवल, एंड एट द स्टेट लेवल वी हैव लेजिस्लेटिव असेंबली। वी हैव लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो लेजिस्लेट करते हैं। तो इन द मेन पार्लियामेंट वी हैव लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट दो चीजों से बनता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। और ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। दिस विल बी अ 5 मार्कर क्वेश्चन, एंड व्हेन दिस क्वेश्चन कम्स डिफरेंट बिटवीन, तो यू हैव टू पुट इट इन अ टैबुलर वे, आपको इसे टैबुलर वे में बनाना है। तो लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लोअर हाउस, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो लो है,
लोअर का मतलब है जहां आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस इज द हाउस ऑफ पीपल। पीपल मतलब हम नहीं है, लेकिन हमने जिनको जो है इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया है, दे आर देयर एज अवर रिप्रेजेंटेटिव्स। एंड इनका जो टर्म होता है वो होता है जनरली 5 years इफ देयर इज नो मिड टर्म पोल। बट इन केस किसी वजह से प्राइम मिनिस्टर को छोड़ना पड़ता है, या देर इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब हमें इस गवर्नमेंट पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा कोई मोशन पास होता है, तो द एंटायर जो आपके मेंबर्स होते हैं ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, दे हैव टू रिजाइन। और जब वो रिजाइन करते हैं, तो एट दैट टाइम द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड। एंड ऑल्सो व्हेन इलेक्शंस आर कंडक्टेड, जब इलेक्शंस कंडक्ट होती हैं उस वक्त में भी लोकसभा को डिसॉल्व करके देन जो नया गवर्नमेंट आता है वो दोबारा से फॉर्म करता है अपने मिनिस्टर्स एंड एमपी। राज्यसभा एज अ वर्ड इटसेल्फ सेज इज राज्य, यानी कि द पीपल हु आर फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स। और इनके जो इलेक्शंस होते हैं राज्यसभा में, हर एक राज्य, हर एक स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करता है, और उनका जो इलेक्शन होता है वो उनके राज्य में जो उनका लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें इट इज द इलेक्शन इज डन। मतलब अब मान लो कि मुझ दिल्ली वाला जो राज्यसभा का मेंबर था वो रिटायर हो रहा, मतलब उसका टेन्योर खत्म हो रहा है, तो दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली में एवरी पार्टी विल नॉमिनेट देयर कैंडिडेट, एंड देन जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलता है उसको नॉमिनेट करते हैं टू राज्यसभा। एंड राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं दे आर प्रोपोर्शनेट टू द एरिया ऑफ दैट स्टेट। लाइक महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, ये आपके बड़े हैं, तो यहाँ के जो आपके राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो ज्यादा है। वेर एज इफ वी टॉक अबाउट दिल्ली और गोवा, वो छोटे हैं तो उनके राज्यसभा के नॉमिनेशन जो नॉमिनीज होते हैं वो लेस होते हैं। नाउ दिस सभा हैज 6 year टर्म एंड इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, क्योंकि वो परमानेंट है। वो परमानेंट क्यों है? क्योंकि एक जो इंसान का टेन्योर, सबका टेन्योर साथ में खत्म नहीं होता है, सबका टेन्योर साथ में खत्म नहीं होता है। हर एक स्टेट के जिस जिसको उन्होंने भेजते गए हैं उनका टेन्योर खत्म हुआ, दे नॉमिनेट। तो देयर इज नथिंग लाइक सबका एक साथ होगा, और इसीलिए इट इज कॉल्ड एज परमानेंट हाउस। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो नॉमिनेट स्पेशल 12 मेंबर्स अपनी तरफ से, एंड टोटल हमारे लोकसभा में 543 है, तो यहां पर हमारे 250 होते हैं। एंड दीज मेंबर्स जो हैं वो होते हैं फ्रॉम स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज एंड स्पोर्ट्स कल्चर, और दो एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस कौन है? जो आपके जो इंग्लिश थे, those who had stayed back, those who had taken the citizenship in India, those who permanently resided, उनके nominees। Thus, there are around 250 members in Rajya Sabha। लोकसभा जो है इट डिस्कसेस ऑल द काइंड्स ऑफ डिबेट्स, नेगोशिएशंस, सब कुछ आपका लोकसभा में पहले डिबेट होता है। और जब वो डिबेट होता है और वो जो तैयार करते हैं डॉक्यूमेंट, उसको हम बोलते हैं बिल। व्हेन द बिल इज डिस्कस्ड इन लोकसभा, देन इट इज सेंट टू राज्यसभा। नाउ इन राज्यसभा द बिल्स कैन बी केप्ट जस्ट फॉर 14 days, मतलब मैक्स उनका 14 days होता है। दे कैन नॉट रिफ्यूज, दे कैन मेक सम चेंजेस, लेकिन वेदर दीज चेंजेस शुड बी टेकन और नॉट, दैट डिपेंड्स ऑन लोकसभा अगेन। और इसीलिए हम बोलते हैं लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा।
क्योंकि राज्यसभा सिर्फ चेंजेस कर सकता है, वो सिर्फ चेंजेस को बता सकता है, और मनी बिल में तो उनको है ही नहीं। नाउ द क्वेश्चन कम्स, वाई, ऐसा क्यों? वाई लोकसभा हैज मोर पावर? क्योंकि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनको कॉमन पीपल इलेक्ट करते हैं ऑन ट्रस्ट बेसिस, एंड राज्यसभा के जो नॉमिनीज होते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय देयर लेजिस्लेटिव असेंबली, और उनको जो है अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। एंड द कॉमन गुड इज लोकसभा, बिकॉज दैट इज द यूनियन गवर्नमेंट, और इसीलिए लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर देन राज्यसभा। तो ये मिलकर आपके जो है लेजिस्लेटिव्स होते हैं। वी हैव द एमपीज, वी हैव द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके होते हैं। नाउ राज्यसभा एमपी, लोकसभा एमपी। द नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव्स। नाउ एग्जीक्यूटिव्स के अंदर वी हैव द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स एंड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हमारे होते हैं दोज हु आर सिलेक्टेड थ्रू द एग्जाम्स, जो आपके यूपीएससी एसएससी इन एग्जाम्स के थ्रू सिलेक्ट होते हैं, एंड दे रिमेन इन देयर सर्विस टिल दे रिटायर और लीव द जॉब। अगर वो जॉब छोड़ देते हैं या फिर दे रिटायर, तब वो लोग जो है छोड़ते हैं। वेरस आपके जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं वो हमारे जितने भी ये एमपीज थे, उसके अलावा जो मतलब कि मिनिस्टर्स हैं, वो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो दे आर ऑल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। व्हाई? बिकॉज दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द लॉ व्हेन दे आर इन देयर टर्म। और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं दे वुड बी लुकिंग कि जो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स ने लॉ बनाए हैं दे आर फॉलोड। लेकिन इंडिया के अंदर देयर इज अ आयरॉनिकल सिचुएशन कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, दे मे नॉट बी एजुकेटेड पॉलिटिकल, और परमानेंट वाले तो होते एजुकेटेड हैं, दे हैव टू कम थ्रू द यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स, लेकिन दे वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। अगेन द सेम क्वेश्चन कम्स कि व्हाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैव मोर पावर? बिकॉज दे आर अपॉइंटेड, दे आर इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल जिन्होंने उन पर ट्रस्ट किया है, whereas permanent executives are the, you can say they are the supporters for political executive. एक मिनिस्टर जो है, he or she cannot take all the decisions. कोई भी मिनिस्टर, अब मान लो मैं मिनिस्टर बन गई, अब मुझे लेबर के बारे में क्या पता होगा? इफ आई एम अ लेबर मिनिस्टर, तो मेरे परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं, दे वुड बी गिविंग मी द डिटेल्स एंड आई विल वर्क अकॉर्डिंग टू देयर गाइडेंस। एंड इन इंडिया वी हैव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट, एंड जो प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट है वो पूरा हमारा आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चंस में आता है कि व्हाट आर द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर? तो इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा उसके हेड है। ही इज द वन, वो सबसे पावरफुल होता है, सबसे पावरफुल होता है, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो पावरफुल होते हैं। ही इज द वन हु फॉर्म्स द कैबिनेट, उनके साथ में जो लोग काम करेंगे, किसको मिनिस्ट्री देनी है, किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, दीज आर ऑल डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अपना कैबिनेट यानी कि वो मिलकर टुगेदर दे वर्क। ही इज द वन हु गिव्स यानी कि डेलीगेट्स द वर्क टू हिज मिनिस्टर्स, अपने मिनिस्टर्स को। और अगर उनको लगता है कोई मिनिस्टर सही से काम नहीं कर रहा है
तो उसको वापस लेकर किसी और को देते हैं, वो भी है। ही इज द वन हु सुपरवाइजेस द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है उसको सुपरवाइज करना उनका काम है। ही इज द वन हु चेयर्स ऑल द मीटिंग्स, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनमें उनको जो है ही इज द मेन पर्सन। तो नाउ व्हेन वी से कैबिनेट मिनिस्टर, तो कैबिनेट मिनिस्टर में हमारे जो है तीन तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं। एक आपके होते हैं मेन, जैसे आपका, जैसे हमारे अमित शाह है, हमारे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी, दे आर द वन। देन देर आर मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट, उनको जो है इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री दी जाती है, यानी कि वो छोटे छोटे मिनिस्ट्रीज होती हैं जो मतलब कि अकॉर्डिंग टू द लेवल जिसमें कम काम होता है वो। एंड नेक्स्ट होता है दोज हु आर सुपरवाइजिंग, जो मेन मिनिस्टर्स को सुपरवाइज करते हैं। तो देर आर थ्री, और ये लोग मिलकर बन जाते हैं एक कैबिनेट। जो आपके मेन मिनिस्टर्स हैं या उनके जो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स हैं, दे ऑल हैव टू कम फॉर ऑल द मीटिंग। लेकिन मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो, जो छोटे मिनिस्ट्री है लाइक पावर, टेक्सटाइल, ये तभी आते हैं मीटिंग में जब इनके एरिया का काम हो। तो 10 प्राइम मिनिस्टर जो है ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन, ही इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन अवर कंट्री। नेक्स्ट हमारे आते हैं प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है, इट इज सेड इन इंडिया द प्रेसिडेंट हैज अ सेरेमोनियल प्रेजेंस, मतलब उनका जो है मेन गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं होता, उनको डेली जो है पार्लियामेंट नहीं आना होता, बट वेर एवर नेसेसरी हिज प्रेजेंस इज देयर। ही इज कॉल्ड एज द हेड ऑफ स्टेट, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। He or she is called as the first citizen of the country और head of the state। जितने भी आपके एग्रीमेंट्स होते हैं दे आर साइंड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नेम में ही साइन होते हैं। जितने भी इंटरनेशनल ट्रेटीज होते हैं वो उनके नाम से साइन होते हैं। ही और शी इज द हेड ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस, हमारे जो मिलिट्री फोर्स है उनके ही और शी इज द हेड। जैसे अभी जो प्रेसिडेंट है, शी इज द हेड। शी हैज सम स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑल्सो, उनके कुछ स्पेशल पावर्स भी है, और वो स्पेशल पावर्स होते हैं ड्यूरिंग स्पेशल टाइम। जैसे there is no majority for any political party in an election, so the president can choose the party and ask them to produce their majority. Similarly, there are some, एक आध बार ऐसा हुआ है in the money bill that the president has not signed, there is no टाइम लिमिट कि उन्हें कितने दिन के अंदर साइन करना, दैट इज कॉल्ड एज पॉकेट वीटो। And third is, if there is any case of criminal hanging, the president has the power to stop it. प्लस जितना भी हमारा कैबिनेट काम करता है इसको वो ओवरसी करते हैं बाय टॉकिंग टू द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, देन चूजिंग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन इन कोलैबोरेशन विद द कैबिनेट मिनिस्टर्स, मतलब उनके साथ नेगोशिएट करने के बाद ही इज द वन, ही और शी इज द वन हु अपॉइंट्स द जजेस, ही और शी इज द वन हु अपॉइंट्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है ये सारे काम करते हैं।
तो प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, बनते हैं पॉलिटिकल. Now the president is not directly elected. He or she is indirectly elected through जिसको हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज. नाउ ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है, ये कोई कॉलेज नहीं है. इलेक्टोरल कॉलेज है ऑल द एमपीज, ऑल द मिनिस्टर्स, ऑल द एमएलए, जितने भी आपके हमारे 28 स्टेट्स हैं, सबके एमएलए जो उनके असेंबली के, दे ऑल हैव टू, जिस दिन बताया जाता है, दे ऑल हैव टू वोट. एंड सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, दे कैन नॉमिनेट द पर्सन फॉर द प्रेसिडेंट्स पावर, मतलब की जो सीट है उसके लिए. एंड दे कैन ऑल्सो नॉमिनेट समवन फ्रॉम द आउटसाइड. अगर कोई इंसान जिसको उन्होंने नॉमिनेट किया वो ऑलरेडी मिनिस्टर है, तो देन द पर्सन हैज टू रिजाइन फ्रॉम हिज मिनिस्ट्री. एक हमारे यहाँ प्रणब मुखर्जी जो थे, ही वॉज वन ऑफ द की मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने रिजाइन किया था. एंड व्हेन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो ही वॉज चूजन एज अ प्रेसिडेंट. तो अगर वो ऑलरेडी मिनिस्टर का पोस्ट होल्ड कर रहे हैं तो ही हैज टू रिजाइन. तो एनी वन कैन बी नॉमिनेटेड, दैट डिपेंड्स ऑन द रूलिंग पार्टी एंड द अदर पार्टीज. और फिर ये सब लोग जो हैं, दे गो फॉर द इलेक्शंस, एंड देन देयर इज अ सिस्टम जिसके थ्रू जो है प्रेसिडेंट को चूज किया जाए. So these were the executives who are working in our country, the political, the permanent. Last but not the least हमारे यहाँ आता है जुडिशरी. एंड इंडियन जुडिशरी जो है उसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड. Why do we call Indian judiciary as integrated? Because in India we have Supreme Court, which is the apex court. Then we have High Court for all the states. Then we have the district courts and other courts. तो देर इज अ जुरिस्डिक्शन की कौन से केसेस आपके सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, कौन से हाई कोर्ट आ सकते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ सकते हैं. बट देर इज ऑल्सो अ जुरिस्डिक्शन की कुछ ऐसे आपके स्पेशल एरियाज होते हैं जहां द सुप्रीम कोर्ट में आज द लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर द केसेस टू सुप्रीम कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर द पर्सन इज नॉट गेटिंग द जस्टिस, ही और शी कैन अपील इन हाई कोर्ट देन टू सुप्रीम कोर्ट. तो इस तरीके से ऑल द कोर्ट्स आर इंटीग्रेटेड. बट सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ पर जो है, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट. एंड एनी डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट्स, एनी डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट आर टेकन इन सुप्रीम कोर्ट. नाउ सुप्रीम कोर्ट जो है, उसके जो भी आपके चीफ जस्टिस होते हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया in accordance with the prime minister and president and the cabinet minister. नॉर्मली एक प्रोसीजर होता है कि जो रिटायर हो रहा है वो अपने नीचे जो उनसे जो सीनियर में होते हैं उसको जो है पोजीशन दी जाती है. नॉर्मली यही होता है, मतलब आई एम द सीनियर मोस्ट, तो आई वुड बी गिवन दैट चांस. बट देन ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वंस, एक बार जो है नेगोशिएट किया जाता है, एंड देन द पर्सन इज अपॉइंटेड. वंस द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड, देन ही और शी कैन नॉट बी रिमूव्ड. द रीजन इज, उसको उनको रिमूव करने के लिए द पर्सन हैज, देयर शुड बी इम्पीचमेंट मोशन. और इम्पीच का मतलब होता है धोखाधड़ी या कोई भी गलत काम. तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू, मतलब जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे हैव टू प्रेजेंट कि ये जो काम है, दिस हैज बीन डन रॉन्ग. इम्पीचमेंट मोशन आपका लोकसभा में होता है, एंड
एंड लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के जो आपके मेंबर्स हैं वो मिलकर वोट करते हैं, एंड इफ 2/3 ऑफ द वोट्स आर अगेंस्ट, then only the judge can be removed. So it is a very difficult procedure to remove the chief justice of our country. This way हमारे यहाँ पर if we talk, तो ये जो सारे के सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस थे, दैट इज आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दे ऑल टुगेदर मेक द इंस्टीट्यूशन दोज हु वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नाउ फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लोकसभा राज्यसभा के बीच का डिफरेंस 200% लर्न करना है। व्हाई डू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैव मोर पावर देन परमानेंट, ये भी करना है। सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे अपॉइंट करते हैं एंड रिमूव करते हैं, हाउ इज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अपॉइंटेड एंड कैन बी रिमूव्ड, ये। व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, then the president of India has a ceremonial presence like the Britain Queen, ये आपके बुक में दिया है। मतलब इन द ब्रिटिश ऑल्सो देर इज, मतलब ओनली फॉर द स्पेशल पर्पसेस जो क्वीन होती है वो आती है, और हमारे यहाँ पर भी व्हेन देर इज अ नीड देन ओनली प्रेसिडेंट इंटरवीन्स। तो उसमें आपको प्रेसिडेंट के सारे पावर्स आपको बताने हैं। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्कर क्वेश्चन। और बाकी 3 मार्कर में वाई, मतलब कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं दे हैव लेस पावर। देन ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला जो कोर्ट में केस हुआ था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन वाला, वो आ सकता है। देन व्हाई इज पार्लियामेंट कॉल्ड एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, ये वाला आपके आ सकता है। तो दीज आर द 3 मार्कर। 2 मार्कर में गवर्नमेंट ऑर्डर क्या था, मंडल कमीशन किसने, मतलब कि क्या सेट किया था, हु से, मतलब कि हु हेडेड द मंडल कमीशन एंड व्हाट वर इट्स रिकमेंडेशन। 2 मार्कर क्वेश्चन। That means from this particular chapter, you can expect all kinds of questions, including assertion reason, MCQs, 3 marker, 2 marker, 3 marker, 5 marker. And as I told you that this chapter is very important from examination point of view. तो इसमें कोई भी चीज छोड़ना मत। Like in some chapters, you can definitely leave 1 or 2 concepts that may be there in the options, but in this chapter is very important, right? So with this, we have revised 2 chapters. One is Forest Society and Colonism, and second is Working of Institutions.